Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will talk about how to crack any software engineer interview in top MNCs like Accenture, Wipro, TCS, Capgemini, and many more. See, basically जो कुछ क्वेश्चंस और कुछ जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन प्रोसेस का वो मोस्टली कॉमन ही होता है इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस. कुछ डिफरेंट जो प्रोफाइल हमारी प्रोफाइल या उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन लाइक प्रोसीजर थोड़ा वो डिफरेंट हो सकता है. But mainly in this video we will focus only on Infosys interview because I have cracked the interview and I got selected. So based on my interview experience, I just want to share my experience with you guys. So I am, as you know, like I am a MVC.NET developer having 4.5 years of experience. So if you are having like 3 to 4 or more than that type of experience, so उस बेस पे आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. सो मेजरली कैसा होता है कि ऑल द रिक्रूटर जस्ट वांट टू नो और दे जस्ट फॉलो द सेम आइडियोलॉजी to taste our knowledge or our confidence for their particular portfolio or profile. So they just first identify through the interview like how confident we are and what ways do you represent the things that you have mentioned in resume. See, resume हमारा base we can say like backbone when we are switching any job in some different organization. बिकॉज रेज्यूमे में वही सब हम इंक्लूड करते हैं जो हमने पहले हमारा वर्क एक्सपीरियंस कैसे कैसे हमने वर्क किया है, किन किन प्रोजेक्ट्स में काम किया है, कैसे हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे रिक्रूटर को इतना आइडिया लग जाता है कि हमने कितना काम किया है और हमारी एबिलिटीज क्या है. और लाइक हर एक इंटरव्यू प्रोसेस के एक प्रोसीजर वो लोग फॉलो करते हैं. लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन वी कैन से फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज लाइक they just want to know about our personal like they will ask like tell me about yourself, your strength and weakness, how you want to see yourself after coming years, like that. So this is like personal we can say. And the second one will be like oops concept. So oops concept commonly we can say it's a must part for all fresher and experienced person. Then they will switch to your technology like जिसमें आपको experience है उसके base पे like MVC है तो MVC के regarding they will ask the questions. Java, React, Node, Angular, whatever you have the experience, they will go with that flow. Then they will move to the database part, which is also the common for all because every developer should have the knowledge or must have the knowledge about database also. Then they will try to move some like what procedure we have followed to fulfill the project requirement and all, like are we approaching that SDLC life cycle or some agile methodology. Nowadays agile methodology mostly सब हर एक organizations follow करते हैं because it is like fast and to achieve the target smoothly. इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटरफॉल मेथोडोलॉजी क्या है और अजाइल मेथोडोलॉजी क्या है और बेस्ट कौन सा अप्रोच है. सो इस वे में वो एक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं. तो ये एक फिक्स फॉर्मेट वी कैन से फॉर ऑल द इंटरव्यूज in any organization. Now we will discuss some FAQs which are commonly or frequently asked, like how many rounds are there in the Infosys interview for experience. As we have talked, like in this video we will discuss about only experienced person. In further video we will discuss about fresher as well. So for experienced person there are 3 rounds commonly, or like first round will be technical and HR. ये मोस्टली एक कॉमन राउंड होता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि टेक्निकल राउंड में आपके सामने 2 person will be there and they will ask technical questions related to your work, related to your resume. See, mostly we 50 to 60% हमारे resume के अंदर से ही questions put up होते हैं. हमने जो mention किया है they will just want to judge ourselves कि इस particular technology या particular stack पे हमारा कितना command है और जो जिस प्रोफाइल के लिए वो हायरिंग कर रहे हैं उसके लिए हम suitable person है कि नहीं है. बिकॉज हमारे resume के बेस पे ही हमें इंटरव्यू का जो शेड्यूलिंग और वो सब होता है. देन सेकेंड राउंड, ये टेक्निकल राउंड के
अंदर मोस्टली इट विल बी लाइक फॉर 30 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स इट विल बी मैक्स टू मैक्स. एंड या जैसे हमने डिस्कस किया वही प्रोसीजर होगा इसमें क्वेश्चंस का. देन सेकेंड राउंड विल बी मैनेजरियल राउंड. सो अगर आपका फर्स्ट राउंड क्लियर होता है तो विद इन द सेम डे आपको ये मैनेजरियल राउंड के लिए कॉल आ जाएगा, एंड दैट विल बी टेलीफोनिक राउंड. ये टेक्निकल राउंड विल बी फॉर लाइक माइक्रोसॉफ्ट और उनका जो भी प्लेटफॉर्म दे प्रोवाइड. एंड मैनेजरियल राउंड विल बी टेलीफोनिक. इट विल बी मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट्स, बिकॉज इसमें सब कुछ मैनेजर्स वगैरह होंगे तो वो लाइक आपको अपनी ओर से जज करना चाहेंगे कि हाँ अगर ये इसने टेक्निकल राउंड क्लियर किया है तो बाकी आगे की जो चीजें हैं उनके लिए भी ये कैपेबल है कि नहीं है. तो उसके बेस पे वो भी बेसिक मेनली वही क्वेश्चंस पूछेंगे जो टेक्निकल राउंड में होते हैं, लाइक सिमिलर क्वेश्चंस वी कैन से, नॉट विल बी सेम. और या मोस्टली क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर रेज्यूमे ओनली. सो मेक श्योर जब भी आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो अपने रेज्यूमे को अच्छे से देख ले और उसमें जो जो आपने मेंशन किया है उसके ऊपर आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए. सी इट डजंट मैटर कि आपने रेज्यूमे 3-4 पेज का बनाया है या एक सिंगल पेज विल बी मोर बेटर, बिकॉज उसमें हमने जो भी लिखा होगा वो एक परफेक्ट, एक जो हमें हमारी अच्छी कमांड है वही हमने मेंशन किया होगा. तो जितना हो सके हमारे रेज्यूमे को हमें सिंपल एंड स्वीट रखना है. देन अगर हमारा मैनेजर राउंड भी क्लियर हो जाता है देन इट विल टेक लाइक 1 or 2 days, नॉट मोर देन दैट. मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मुझे इंटरव्यू प्रोसेस के बाद हार्डली आफ्टर 3 to 4 days में मुझे ऑफर लेटर और वो सब उन्होंने सेंड कर दिया था. देन नेक्स्ट जैसे आपका मैनेजर राउंड क्लियर होता है देन दे विल गो फॉर द HR राउंड, एंड HR राउंड के अंदर आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस होगी कि इफ यू सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोफाइल देन आपको क्या रोल मिलेगा और क्या वो ऑफर करेंगे, लाइक दैट, लाइक पैकेज वगैरह. सो दिस इज अबाउट लाइक ये इंटरव्यू राउंड जिसके अंदर मैंने ये प्रोसेस भी आपका इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि जो हमारी इंटरव्यू की प्रोसेस है वो कैसे होगी. और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द जॉब इन इन्फोसिस और कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे सिर्फ हम एक ओवरऑल ब्रीफ डिस्कस करेंगे. देन लेट्स कम टू द इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन. सी यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिससे आपको आइडिया मिल सके कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. तो नो नीड टू बी वरी, इट विल बी वेरी सिंपल. सी आपको अगर नॉलेज है एंड अगर आपने अच्छे से काम किया है तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड कि जितना हम सोचते हैं कि टॉप MNCs में इंटरव्यू प्रोसेस बहुत हार्ड होता है. सो इट मॉडरेट वी कैन से. एंड अगर हमारी अच्छी बूस्ट है तो मॉडरेट भी नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा एंड यू विल एंजॉय योर इंटरव्यू इवन. और जब भी आप इंटरव्यू दो सो डोंट बी पैनिक, डोंट बी नर्वस, जस्ट एंजॉय इट लाइक यू आर लर्निंग समथिंग, लाइक दैट. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ विच इज द कॉमन. ये क्वेश्चन का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है. तो हमें इसके कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सडनली इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो खुद के बारे में भी अच्छे से हम नहीं बता पाते. तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि कैसे हम इसको हम प्रिपेयर करके रखें टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर को, बिकॉज इट इज द मस्ट पार्ट जिससे हमें वो हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा नॉलेज यहाँ से ही पता चलता है कि हाँ हमने एक्चुअल में जो वर्क किया है वो कितना इफेक्टिव है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाई शुड यू ज्वाइन इन्फोसिस. दे विल आस्क लाइक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाई यू चूज इन्फोसिस ओनली. सो वी कैन से लाइक आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो. मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे. लाइक वी कैन से लाइक employee friendly organization, and it's a brand which have a good reputation in the market, and want to work in an environment that works on a large scale so that I can put my effort as the best team player to achieve the company's mission. So इससे क्या है, एक impression हमारी जाएगी कि हाँ ये particular person they really want to work for the company's MVV like mission, vision and value. And another one we can say like recognized as a great place to work. See, this is a about which Infosys have like a great place to work. So Infosys they also I can ask the question like agar if your Infosys is your dream job or if you want to be a part of Infosys, then you should aware some you should be aware about Infosys, like some basic questions we should know. Even
आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो तो जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके बारे में हमें थोड़ा एक आइडिया, उनके पर्टिकुलर जो उनका पोर्टल होता है वहाँ पे जाके हमें उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है। और सीईओ फाउंडर मोस्टली पूछते नहीं है, बट इन्फोसिस में बहुत बार पूछ लेते हैं कि सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है। सो सीईओ इज लाइक मिस्टर शलील पारेख एंड फाउंडर इज मिस्टर नारायण मूर्ति, यू कैन से। देन करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द करंट प्रोजेक्ट। सी इसके बाद से स्टार्ट होता है हमारे रेज्यूमे का प्रोसेस। लाइक रेज्यूमे में हमने जो जो प्रोजेक्ट मेंशन किया है उसके बेस पे हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में दे विल वांट टू नो, लाइक आपके करंट प्रोजेक्ट में आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देन हम इसके बारे में भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए, हमने जिस भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये एक मस्ट है। और कैन यू गिव सम डिटेल्स ऑन द प्रोजेक्ट यू हैव डन, लाइक वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट किस बारे में था, क्या था, मॉड्यूल्स वगैरह एंड ऑल। नाउ दे विल स्विच लाइक उप्स कॉन्सेप्ट एज वी डिस्कस। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बिकॉज उप्स के मोस्टली कॉमन ही क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इट्स ऑल अबाउट पिलर्स एंड सम मोर। देन नेक्स्ट वन इज लाइक अगर यहाँ से आपकी टेक्नोलॉजी वाइज स्टार्ट होता है कि जिस भी स्टेक पे आपने काम किया, लाइक एमवीसी में काम किया तो दे विल आस्क लाइक व्हाट इज एमवीसी, व्हाट इज व्यू मॉडल, what is view start, and what is the render body and render page, and then difference between function and stored procedure, like they will move to the SQL part even, like default routing कैसे होता है, how are data and structure managed maintained in the database, then how the connection string work in MVC, how do you connect the MVC application to the database, rate yourself out of 10 in SQL। वो SQL के क्वेश्चंस पे मूव होने से पहले आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अपने आप को आप 10 में से SQL में कितना आप अपने आप को रेट करेंगे। ये सेम एमवीसी के लिए भी वो पूछ सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है उस पर आपकी कितनी कमांड है। तो इसके बेस पे फिर वो क्वेश्चन हमें पुट अप करेंगे कि अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरी 10 में से 8 आई विल रेट माई सेल्फ, सो दे विल गो इन दैट फ्लो। then what is trigger in SQL, inner join, how you optimize query in SQL। सी अगर आपने कभी ट्रिगर पे काम नहीं किया या इसके बारे में आपको नहीं पता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। हमें मेन जो डेटाबेस रिलेटेड होता है ना वो लोग ज्यादातर फोकस करते हैं कि हाउ यू ऑप्टिमाइज अ क्वेरी, और अगर कोई भी बग आती है किसी स्टोर प्रोसीजर है उसमें तो आपका कौन सा अप्रोच होगा उसको सॉल्व करने का, वो सबसे ही वो मेन हमारा नॉलेज जानने का ट्राई करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक रिलेटेड। नाउ दे विल मूव टू द लाइक मेथोडोलॉजी एज वी डिस्कस। अगर हमने लाइक अजाइल मेथोडोलॉजी में वर्क किया है तो डेफिनेटली दे विल आस्क अबाउट स्प्रिंट्स एंड ऑल, लाइक दे विल आस्क लाइक डिफरेंस बिटवीन डीएसएम एंड स्प्रिंट, लाइक जो डेली स्टैंडअप मीटिंग्स होती है और जो आफ्टर 15 डेज और जितना इंटरवल डिसाइड होता है उसके बाद जो स्प्रिंट मीटिंग होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। देन दे विल आस्क लाइक व्हाट इज स्प्रिंट प्लानिंग एंड डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड स्टैंडअप same। Then what is agile क्या है, where do you see yourself in the next 5 years। see these are the questions which I have faced and mostly मैंने यहाँ पे mention किया। बहुत सारे questions है जो शायद मैंने नहीं mention किए क्योंकि वो मैटर नहीं करते। बेसिक हमारा को कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि हमने जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करना होता है उस पर हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए और मेन हमारा कॉन्फिडेंस। सी अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता तो यू कैन फ्रेंकली से लाइक सॉरी आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो दे विल कंसिडर लाइक या it is not compulsory like whatever they will ask we will have any questions answer, so that's not a big problem। हमें मेन हमारा कॉन्फिडेंस और लाइक हमें ऐसे दिखाना है कि वी आर ए सेल्फ लर्नर एंड क्विक लर्नर, कि अगर कुछ भी ऐसा आता है तो हम खुद से सीख सकते हैं, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड वी हैव टू बी वेरी वेरी डायनेमिक, लाइक जैसे रिक्वायरमेंट आती है हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को स्विच करना होता है। तो ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए इसके अंदर। इवन यू कैन ऑल्सो कंसिडर और you can mention also like when they ask like what is your strength, so you can mention like yeah this is my strength, like I am a quick learner or self learner, like that। In next video we will cover all the points like step by step how we can apply, how the process will be go at the time of interview and interview scheduling के बाद में interview process कैसे होगी, interview complete होने के बाद क्या process होगी, and that's all। so I hope it may help you somewhere, and I will share this link in my description box so you can go and check for the further details। Thanks for watching, stay tuned and we will see you in the next video। Till that keep learning and keep exploring।